حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں کیا ہے تاکہ ہم ان کے ذکر کو پڑھیں اور سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بآسانی عمل کر سکیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس سے پہلے ہم سیدنا داؤد علیہ السلام پر ایک ویڈیو بنا چکی ہیں، آپ وہ جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، کم عمر ہونے کے باوجود آپ اپنے والد کی ہر مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک روز دو آدمی جھگڑ پڑے، وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا میرا انگوروں کا باغ تھا، اس کی بکریاں رات کو باغ میں داخل ہو گئی اور انہوں نے سارے باغ کو اجاڑ دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے دوسرے آدمی سے پوچھا کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ جواب میں اس نے کہا جی ہاں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے کچھ دیر سوچا پھر فرمایا باغ کا مالک اپنے نقصان کے بدلے میں اس شخص کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لے۔ جب دونوں فیصلہ کروا کر باہر نکلے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ باغ کا مالک بکریاں اپنے قبضے میں لے لے اور ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، بکریوں کا مالک باغ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے محنت کرے، جب باغ اپنی پہلی والی حالت پر آ جائے تو باغ کا مالک اپنا باغ لے لے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب آپ کے فیصلے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے، ایک مرتبہ دو عورتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑا لے کر آئیں۔ جھگڑا یہ تھا کہ دونوں عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب دونوں عورتوں کی بات سنی تو فیصلہ بڑی عورت کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد دونوں عورتیں باہر نکلی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا تم دونوں کو دے دیتا ہوں۔ چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا نہیں نہیں ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کیجئے، میں نے مان لیا ہے یہ اسی کا بچہ ہے۔ آپ نے چھوٹی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے، پھر بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ان واقعات سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذہانت واضح ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بچے والا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور مطلب ان کی ذہانت واضح کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرے تو اس کی تصحیح کرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جگہ بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی تو آپ کو نبوت بھی عطا ہو گئی، گویا آپ کے والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ اس طرح آپ دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں آپ نے گھوڑوں کا خاص طور پر انتظام فرمایا۔ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کی مختلف نسلوں اور ان کی ذاتی اوصاف کے علم میں کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل، خوشرو اور بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو میرے پروردگار کے ذکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے دوران گھوڑے واپس استبل کو روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم فرمایا ان کو واپس لاؤ۔ وہ جب واپس لائے گئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے محبت کی اور جہادی آلات ہونے کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، ایک ماہر کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا بلا شبہ میں اپنے رب
मिज़ाक की याद की वजह से इस घोड़ों से मोहब्बत की है, यहाँ तक कि घोड़े ऊँट में छुप गए। कहा, उन्हें मेरे पास लाओ। फिर वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हवा को आपके तबी कर दिया। आप जानते हैं हवा किस कदर ताकतवर और तेज रफ्तार चीज है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अजीम नेमत मिली थी। आपको जहाँ जाना होता था उस जगह के बारे में हवा को हुक्म देते, हवा उस तख्त को उड़ा ले जाती और उस जगह पहुँचा देती। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तेजो तंद हवाओं को सुलेमान के ताबिया कर दिया, जो उसके हुक्म के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दना हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खातर काम करने वाले जिन्नों को भी उनका मतिया बना दिया था। वो जिन आपके लिए हर वो काम करते जिसका आप उन्हें हुक्म देते थे। वो जिन अगर आपकी फर्मा बरदारी ना करता तो अल्लाह ताला उसे कड़ी सजा देते। इनमें से कुछ जिन्नात को आप तमीरात के काम में लगा देते और कुछ गोताखोरी करते ताकि समंदर से हीरे जवाहरात निकाल लाएं। इन नेमतों के अलावा अल्लाह ताला ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की बोलियां भी सिखा दी थी। आप उनकी बातें समझते थे, उनसे बातचीत करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, ऐ लोगो, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर चीज दी गई है। बिलाशुबा ये तो साफ अल्लाह का फजल है। इसी तरह सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बहुत अजीबो गरीब था। दूसरों के लश्करों की मानद नहीं था। वो सिर्फ फौजों और असले ही पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि उसमें हवानात, परिंदे और जिन्नात भी शामिल थे। एक मर्तबा आप लश्कर के साथ चले जा रहे थे, यानी इंसानों के अलावा हवानात, परिंदे और जिन्नात भी आपके साथ थे। परिंदे अपने परों से आपके सर पर साया किए हुए थे ताकि आपको गर्मी और धूप से बचाए। इस लश्कर पर कुछ निगरानी करने वाले भी मुकर्रा थे ताकि सब एक काफले में और तरीके से चले, कोई अपनी कितार से इधर उधर ना हो, ना कोई अपनी जगह तब्दील करे। ऐसे में उनका गुजर चूंटियों की वादी से हुआ। चूंटियों की मलका ने इतने अजीमुल शान लश्कर को आगे आते देखा तो उसे अपनी कौम के लिए खतरा महसूस हुआ। वो बुलंद आवाज में बोली, ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। सलमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ बड़े चले आ रहे हैं, कहीं तुम उनके पैरों तले न रोंद जाओ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों की ये बात सुन ली। आप ये बात सुनकर खुश हुए कि अल्लाह ताला ने आपको चूंटियों की बात सुनने की ताकत भी अता फरमाई है। पूरे लश्कर में से और किसी को ये ताकत हासिल नहीं थी। आपने फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ऐ मेरे रब, मुझे इस बात पर कायम रखें कि मैं आपके एहसानात का शुक्र अदा करता रहूं जो आपने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं, और ये कि मैं ऐसे नेक काम करता रहूं जिनको आप पसंद करते हैं, और मुझे नेक बंदों में शामिल रखें। इस तरह तमाम परिंदे भी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया थे। आप उनके जिम्मे जो काम लगाते वो उसको कर डालते थे। हुदहुद एक परिंदा है, उसके जिम्मे ये काम था, जब भी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत महसूस होती तो वो पानी वाली जगह की तरफ रहनुमाई करता था। एक दिन हुदहुद को आपके पास हाजिरी में देर हो गई। उसे मौजूद ना पाकर आपने फरमाया, मैं हुदहुद को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे जिबा ही कर दूंगा। हुदहुद आया तो उसके साथी परिंदों ने उसे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की नाराजगी के बारे में बताया तो वो फौरन आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने अपनी गैर हाजिरी की वजह बताते हुए कहा, मैं एक ऐसी चीज देख कर आया हूँ जो आपके इल्म में नहीं। वो एक बहुत अहम खबर है। मैं एक सल्तनत में गया था, उसका नाम सबा है। वो एक बहुत बड़ी सल्तनत है। वो बहुत दौलतमंद है। उनका एक तख्त शाही भी है। उस तख्त में तरह तरह के हीरे जवाहरात और मोती जड़े हुए हैं, यानी वो एक कीमती तख्त है। लेकिन उसकी हुक्मरान एक मलका है। वो लोग गुमराही में डूबे हुए हैं। शैतान ने उन्हें बरगला रखा है। वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते जो अर्श अजीम का मालिक है, जो उनकी हर उस हरकत से बाखबर है जिसको वो छुपाते हैं या जाहिर करते हैं। वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अब तक हुदहुद से नाराज थे, लेकिन ये तफसील सुनकर नरम पड़ गए। उन्होंने कहा, हम अभी देख लेते हैं तू सच कहता है या झूठों में से है। फिर उस गुमराह कौम के बारे में सुनने के बाद आपने इरादा कर लिया कि उसे राह रास्त पर लाएंगे, उन्हें एक अकेले महबूद की
इबादत की दावत देंगे, सूरज की पूजा से उन्हें रोक देंगे। आपने उन्हें एक खत लिखा, उसमें उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत इख्तियार करने की दावत दी और ये भी लिखा, तुम लोग मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लो और मेरी फर्मा बरदारी में आ जाओ। ये खत आपने हुदूद को दिया और फरमाया, इस खत को संभाल लो, उनकी मलका के पास जाओ, फिर इंतजार करो वो क्या जवाब देती है। जो जवाब दे फौरन आकर मुझे बताओ। हुदूद ने खत उठाया और तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, यहाँ तक के वो उस औरत के महल तक जा पहुँचा। हुदूद ने खत उसके पास रख दिया और खुद एक तरफ हो गया और जवाब का इंतजार करने लगा। मलका खत देखकर चौंकी, उसने उसको उठा लिया। खत पढ़कर वो परेशान हो गई। उसने फौरन अपने वजीरों और मशीरों को बुलाया, फिर उनसे कहा, ऐ लोगो, मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खत भेजा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम फर्मा बरदार बनकर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। अब तुम मुझे मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए। उन सब ने यक जुबान होकर कहा, हमारे पास जबरदस्त फौज है, ताकत है, हम में जंग की जबरदस्त सलाहियत है, हम बड़े बड़े बहादुरों का मुकाबला कर सकते हैं। इन सब कमालात के बावजूद हम फैसला आप पर छोड़ते हैं, आप जो भी फैसला करें हम मानेंगे। मलका एक अक्लमंद औरत थी, उसे अच्छी तरह मालूम था कि मामलात को कैसे निपटा जा सकता है। उसने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत ही से अंदाजा लगा लिया था कि वो किस कदर ताकत के मालिक हैं। उनका मुकाबला किया जा सकता है, न उन्हें किसी तरह धोखा दिया जा सकता है। चुनाचा उसने अपने वजीरों से कहा, बात ये है, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे वैरान कर डालते हैं, वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील करके रख देते हैं। मेरा ख्याल है हम उनके पास कीमती और बड़े बड़े तहफ रवाना करते हैं और देखते हैं कि सलमान अलैहिस्सलाम इसका जवाब क्या देते हैं। ये सुनकर सब ने कहा, ये बहुत अच्छी राय है। उस मलका का नाम बल्कीस था। मलका का ख्याल था कि वो इन तहाइफ से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल कर लेंगी। साथ ही वो ये चाहती थी जो कासद तहाइफ लेकर जाए वो सलमान अलैहिस्सलाम की ताकत का भी अंदाजा लगाते आए। उसे यह बात मालूम नहीं थी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हालते कुफर में उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। वो तो उन्हें दायरा इस्लाम में लाने की ख्वाहिशमंद है। उनकी असल खुशी तो इसी बात में थी। हुदहुद ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा हाल सुनाया। उसके चंद दिन बाद बल्कीस के कासद तहफ लेकर वहाँ पहुँच गए। यूं ही कासद ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, उन सब पर रोहब तारी हो गया। आपकी अजीम तरीन बादशाहत और आपका अजीम लश्कर देखकर उनकी अकलें दंग रह गई। मलका के तहफ बहुत कीमती थे, लेकिन आपने उनकी तरफ नजर तक ना उठाई। आपने उन कासदों से फरमाया, क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उससे बहुत बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। तुम जो तहफ लाए हो उनको वापस ले जाओ। मुझे अल्लाह ताला ने इस कदर नेमतों से नवाजा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं उनके पास अपने लश्कर रवाना करूंगा जिन्हें रोकने की किसी में ताकत नहीं होगी। कोई उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगा। उनसे लड़ना किसी के बस में नहीं होगा। फिर हम उन्हें जलीलो रुस्वा करके उनकी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे। ये पैगाम और तहफ जब मलका तक वापस पहुँचे और कासदों ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उसे मालूम हो गया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं एक नबी भी हैं। उसे यकीन हो गया कि आपकी इताअत के सिवा कोई चारा नहीं। उनकी इताअत किए बगैर वो मलका भी नहीं रह सकती। चुनाचा उसने अपने मुल्क से निकलने का इरादा कर लिया। मलका बल्कीस का एक बहुत बड़ा तख्त था, उसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। उस तख्त की कोई मिसाल नहीं थी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और परिंदों के जरिए से ये मालूम हो चुका था कि वो आपकी तरफ आने की तैयारी कर रही है। तब आपने मलका बल्कीस को और उसकी कौम को अल्लाह ताला की इताअत करदा ताकत दिखाने के लिए अपनी फौज को मुंतखब किया और फरमाया, तुम में से कोई है जो उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। आपकी बात सुनकर एक सरकशदियों ने आपसे अर्ज किया, मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले उसे आपके पास ला सकता हूँ। यकीनन मैं ऐसा करने पर कादर हूँ और मैं हूँ भी ईमानदार। इस जिन की ये बात सुनकर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसका नाम आसफ बिन बरखिया था, वो बोल उठा, मैं आपके पलक झपकने से पहले ही उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। फिर वाकया ही सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले
मलका बल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। उस पर आपने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और फरमाया, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए मैं शुक्र गुजारी करता हूँ या ना शुक्री, और शुक्र गुजारी तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र गुजारी करता हूँ, और जो ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बड़ा बेपरवाह और करीम है। इसके बाद आपने हुक्म दिया उसके तख्त में कुछ तब्दीली कर दो ताकि मालूम हो कि वो उसे पहचानती है या नहीं। मतलब ये था कि इस तख्त में कुछ तब्दीली करो ताकि हम देख लें वो पहचान सकती है या नहीं। फिर मलका बल्कीस सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंची। वो जो ही आपके नजदीक पहुंची आपको सलाम किया तो वो तख्त उसे दिखाई दिया। तख्त को देखते ही वो हैरत ज़दा रह गई, उस पर दहशत सी तारी हो गई, सोच में पड़ गई, ये तख्त तो मेरे तख्त जैसा ही है, लेकिन अगर ये मेरा है तो यहाँ कैसे आ गया। अभी वो सोच में गुम ही थी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। चंद लम्हात तक वो जवाब ना दे सकी, सोच रही थी क्या जवाब दे। आखिर उसने कहा, यूं लगता है जैसे ये वही है। आखिरकार सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ये तुम्हारा ही तख्त है और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो यहाँ मौजूद है। लिहाजा तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। जिस तरह तुम अपने तख्त को पहचानने में गलती कर चुकी हो, इसी तरह अल्लाह को पहचानने में भी गलती पर हो। वो कोई जवाब ना दे पाई। मलका बल्कीस और उसकी कौम दरअसल इस ख्याल में थी कि इल्म और तरक्की में वो सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ उन्होंने देखा था उससे अब वो ये महसूस किए बगैर ना रही कि उनकी सल्तनत की तरक्की सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस की हैरत में और इजाफा करने के लिए उसे और उसकी कौम को इस्लाम के मजीद करीब करने के लिए एक और तरकीब इख्तियार की। वो उन लोगों को बताना चाहते थे कि अल्लाह ताला ईमान लाने वाले बंदों पर किस तरह फजल और अनायत फरमाता है। आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि एक अजीमुल शान महल तैयार कर दें, ऐसा महल के मलका बिल्कीस ने उस जैसा महल पहले कभी ना देखा हो और जिसकी गुजरगाह शीशे की हो और उस शीशे के नीचे से पानी चलता दिखाई दे। जिन्नात ने आपके हुक्म की तामील की। मलका बिल्कीस जब आपको मिलने के लिए आई तो आप इस महल में बैठे हुए थे। मलका बिल्कीस ने जो ही शीशे के फर्श पर पाँव रखना चाहा उसे पानी रुआ नजर आया। चुनाचा उसने फौरन अपनी पिंडलियों पर से लिबास ऊपर कर लिया कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं। फिर जब उसने पाँव फर्श पर रखा उसे मालूम हो गया कि यहाँ पानी तो क्या नमी भी नहीं है। उसे बताया गया ये तो सिर्फ शीशे की इमारत है। अब उसे यकीन हो गया ऐसी कारागरी तो इंसानी ताकत से बाहर है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से हो सकता। सो कहने लगी, मेरे परवरदिगार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन की फरमा बरदार बनती हूँ। उसे यकीन हो गया कि वो सूरज की पूजा पर कायम थी जो सरासर गुमराही थी। चुनाचा वो एक अल्लाह पर ईमान ले आई। उसके ईमान लाते ही पूरी कौम सबाह भी ईमान ले आई। उन्होंने सूरज की इबादत से तौबा कर ली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में जिन्नात भी थे। वो आपके हुक्म से समंदरों में गोता लगाते जिसके वो माहिर थे और हर वो काम करते थे जिसका आप उन्हें हुक्म देते थे। लेकिन उन जिन्नात का ये दावा था कि वो गैब की बातें जान लेते हैं। आप उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते थे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को बैतुल मुकद्दस की तामीर पर लगा दिया। खुद लाठी की टेक लगाकर खड़े हो गए। इसी हालत में आपकी वफात हो गई, लेकिन आपका जिस्म लाठी के सहारे इसी तरह खड़ा रह गया जिस तरह वो जिंदा हालत में था। इधर जिन्नात काम में मसरूफ रहे क्योंकि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उनके सामने मौजूद थे। उनके हुक्म को पूरा करना उनके लिए जरूरी था, लिहाजा उन्होंने अपना काम जारी रखा। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक के उनका काम मुकम्मल होने के करीब हो गया। इधर उस लाठी को दीमक मुसलसल चाट रही थी, यहाँ तक के लकड़ी बिल्कुल खोखली हो गई और आखिर इस कदर कमजोर हो गई कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म नीचे गिर गया। तब कहीं जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो बहुत मुद्दत पहले इंतकाल हो चुका है। इस तरह इनका यह दावा गलत साबित हो गया कि वो गैब दान है। दूसरे लोगों को भी मालूम हो गया कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं। जिन्नात अगर गैब दान होते तो इतनी तवील मुद्दत तक मुसलसल काम ना करते रहते, फौरन काम
अलैहिस्सलाम से अलग हो जाते। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्नों को घुंड के कीड़े के सिवा किसी चीज ने भी सुलेमान की मौत की इतला ना दी। वो उस लाठी को खाता रहा। फिर वो जब गिर पड़ा तो जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो इस रिस्वा कुन मुशक्कत में मुब्तला ना रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जादू वाली कहानियों में होता है, लेकिन ये वाकया बिल्कुल सच्चा है, जबकि वो कहानियां आम तौर पर फर्जी होती हैं।